خزاں کی مبارک عید کفارے کا دن آ گیا ہے۔ آج ہم اکٹھے خدا کے کلام کا مطالعہ واضح عنوان کفارے کا دن اور مخلصی کا فضل کے تحت کرتے ہیں۔ کفارے کے دن کا آغاز تب ہوا جب اسرائیلی سونے کے بچڑے کی پوجا کرتے تھے، جب موسیٰ نے 10 احکام کی پہلی لوحیں حاصل کی تھیں۔ اس نے 10 احکام کی پتھر کی لوحوں کو پہاڑ کے نیچے پھینک کر توڑ دیا، اور اس دن 3000 لوگوں کو موت کے گھاٹ اتارنے کا المناک واقعہ پیش آیا۔ انہوں نے سونے کے بچڑے کے بت کی پوجا کی اور اس طرح سے خدا کے پہلے حکم کی خلاف ورزی کی۔ بعد میں لوگوں نے ایک بار پھر موسیٰ کے وسیلہ خدا کی مرضی سنی اور اپنے گناہوں اور خطاؤں کو درست طور پر سمجھے، اور خلوص دل سے خدا کے حضور ان کے تمام گناہوں اور خطاؤں کو معاف کرنے کی درخواست کی۔ اس لیے خدا نے ان کے گناہوں کی معافی کی علامت کے طور پر دوسری بار 10 احکام کی لوحیں دینے کا فیصلہ کیا۔ اس لیے انہوں نے موسیٰ کو دوبارہ کوہ سینا پر آنے کا حکم دیا۔ وہ دن مقدس کیلنڈر کے چھٹے مہینے کا پہلا دن تھا۔ چھٹے مہینے کے پہلے دن موسیٰ کوہ سینا پر دوسری بار گیا۔ 40 دنوں تک روزہ رکھنے کے بعد موسیٰ خدا سے دوسری بار 10 احکام کی لوحیں حاصل کر کے نیچے آیا تھا۔ دوسرے الفاظ میں وہ دن جب موسیٰ خدا کی طرف سے ملے 10 احکام کے ساتھ نیچے آیا، جو کہ اسرائیلیوں کے تمام گناہوں اور خطاؤں کی معافی کی علامت ہے، مقدس کیلنڈر کے 7ویں مہینے کا 10واں دن تھا۔ 7ویں مہینے کا 10واں دن کفارے کے دن کے طور پر مقرر کیا گیا تھا، ایک ایسا دن جب خدا کے فضل سے تمام گناہ اور خطائیں معاف کی جاتی ہیں۔ 7ویں مہینے کے پہلے دن کفارے کے دن کی تیاری کے لیے نرسنگیں پھونکے گئے۔ یوں خدا نے 7ویں مہینے کے پہلے دن نرسنگوں کی عید اور 10ویں دن کفارے کا دن مقرر کیا، تاکہ لوگ اپنے دلوں اور ذہنوں کو مکمل طور پر خدا کی طرف پھیریں اور اپنے گناہوں اور خطاؤں کا اقرار کریں اور توبہ کریں۔ خدا محض یہ نہیں چاہتے تھے کہ ہم پرانے عہد نامہ کی قربانیوں کے ضابطوں کو جانیں، بلکہ انہوں نے ہمارے لیے ان ضابطوں میں چھپے روحانی مفہوم کو دریافت کرنا ممکن بنایا ہے۔ 7ویں مہینے کے 10ویں دن دوسری بار 10 احکام حاصل کرنے کی اہمیت خدا سے ہمارے تمام گناہوں اور خطاؤں کی معافی حاصل کرنے کی علامت ہے۔ چونکہ آج کفارے کا دن ہے، اس لیے ہمیں گناہ کے معاملے کا جائزہ لینا چاہیے۔ آئیں احبار سے دیکھتے ہیں کہ کفارے کے دن پر کس قسم کی عبادتی رسم ہوتی تھی۔ مہربانی سے احبار کی کتاب باب 16 کھولیں۔ احبار باب 16 آیت 6 سے دیکھتے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ خدا نے پرانے عہد نامہ میں مخلصی کے مفہوم کو کیسے بیان کیا تھا۔ باب 16 آیت 6، اور ہارون خطا کی قربانی کے بچڑے کو جو اس کی طرف سے ہے گزران کر اپنے اور اپنے گھر کے لیے کفارہ دے، پھر ان دونوں بکروں کو لے کر ان کو خیمہ اجتماع کے دروازہ پر خداوند کے حضور کھڑا کرے، اور ہارون ان دونوں بکروں پر چٹھیاں ڈالے، ایک چٹھی خداوند کے لیے اور دوسری عزازیل کے لیے ہو، اور جس بکرے پر خداوند کے نام کی چٹھی نکلے اسے ہارون لے کر خطا کی قربانی کے لیے چڑھائے، لیکن جس بکرے پر عزازیل کے نام کی چٹھی نکلے وہ خداوند کے حضور زندہ کھڑا کیا جائے تاکہ اسے کفارہ دیا جائے، اور وہ عزازیل کے لیے بیابان میں چھوڑ دیا جائے۔
पुराने अहदनामा के वक्तों में कफारे के दिन काहिन अपने और अपने घराने के लिए एक बछड़ा कुर्बान करता था और 2 बकरे चुनता था। एक बकरे को खुदावंद के लिए खता की कुर्बानी के तौर पर चुनते थे और दूसरे बकरे अज़ाज़ील को, जो शैतान को जाहिर करता है, जो गुनाह का मौजद है, बहुत से गुनाह उठाने के लिए चुनते थे। इस तरह 2 बकरों पर चिट्ठियां डाली जाती थीं। एक खता की कुर्बानी के तौर पर खुदा के लिए और दूसरी अज़ाज़ील के लिए। आइए खुदा के कलाम का मुताला जारी रखते हैं, ये मालूम करने की गर्ज से कि जिन पर चिट्ठियां डाली गई थीं उनके साथ क्या किया गया था। आयत 20 की तरफ जाते हैं। आयत 20 देखते हैं। और जब वो पाकतरीन मकाम और खैमा इज्तिमा और मज़बा के लिए कफारा दे चुके तो उस जिंदा बकरे को आगे लाए और हारून अपने दोनों हाथ उस जिंदा बकरे यानी अज़ाज़ील के सर पर रखकर उसके ऊपर बनी इसराइल के सब बदकारियों और उनके सब गुनाहों और खताओं का इकरार करे और उनको उस बकरे के सर पर धरकर उसे किसी शख्स के हाथ जो इस काम के लिए तैयार हो बियाबान में भिजवा दे और वो बकरा उनकी सब बदकारियां अपने ऊपर लाते हुए किसी वीराना में ले जाएगा। सो वो उस बकरे को बियाबान में छोड़ दे। जब अज़ाज़ील को बियाबान में छोड़ दिया जाता था तो वहां उसके खाने के लिए खुराक या घास नहीं होती थी। अज़ाज़ील इधर उधर भटकता रहता था और आखिरकार बियाबान में मर जाता था। हमें अच्छी तरह समझना चाहिए कि क्यों खुदा ने ये तमाम तरीकाकार कायम किया था। गुनाह बराह रास्त कफारा नहीं बनता और गायब नहीं होता। जब लोग गुनाह करते थे तो वो एक भेड़ या बकरा लाते थे और काहिन के सामने अपने गुनाह का इकरार करते थे। वो अपने गुनाह किस पर मुंतकिल करते थे? वो उस जानवर पर मुंतकिल करते थे। ये एक ज़ाब्ता था जिसके तहत गुनाहों की मजदूरी जो उन्हें मौत के साथ अदा करनी चाहिए थी एक जानवर को मुंतकिल हो जाती थी। पुराने अहदनामा के वक्तों में इस ज़ाब्ते को कायम करने में खुदा की गहरी मर्जी पोशीदा है। जब गुनाहों को किसी भेड़ या बकरे पर मुंतकिल किया जाता है तो आखिरकार तमाम गुनाहों को खत्म करने के लिए उसे मरना चाहिए। ताहम गुनाह फौरन खत्म नहीं होते। इसकी बजाय भेड़ या बकरों को मुंतकिल होने वाले गुनाह 1 साल तक मकदस में रहते हैं। उस दिन जानवरों का खून जो मकदस में कुर्बानगाह के सींगों पर लगाया जाता था उसका मुकम्मल तौर पर कफारा दिया जाता था और आखिरकार कफारा का दिन खत्म हो जाता था। आरजी कफारा हासिल किया जाता था लेकिन गुनाहों का मुकम्मल कफारा सिर्फ कफारे के दिन पर ही हो सकता था। खुदा ने इस निजाम को पुराने अहदनामा के जमाना में मूसा की शरीयत के जरिए कायम किया था। इसलिए कफारे के दिन काहिन को पाकतरीन मकाम में दाखिल होना चाहिए था ताकि गुनाह मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाएं। सरदार काहिन के पाकतरीन मकाम में दाखिल हुए बगैर गुनाह हमेशा के लिए खत्म नहीं होते बल्कि महज कुछ अरसे के लिए मकदस में मुंतकिल हो जाते हैं और वहीं रहते हैं। ताहम कफारे के दिन काहिन पाकतरीन मकाम में दाखिल होता था। वो लोगों के गुनाह अज़ाज़ील पर मुंतकिल करता था और फिर उसे बियाबान में छोड़ देता था। तो फिर तमाम गुनाह किस पर मुंतकिल होते थे? वो मुकम्मल तौर पर अज़ाज़ील के हवाले कर दिए जाते थे जो इब्लीस को जाहिर करता है, जो गुनाह का मौजद है। फिर अज़ाज़ील को वीरान बियाबान में छोड़ दिया जाता था जहां ना लोग होते थे ना सब्जा बल्कि महज बंजर जमीन। आखिर में अज़ाज़ील मौत की जमीन में भटकता रहता और खाने पीने से कासी रहता था और आखिरकार वहीं मर जाता था। ये आइन पुराने अहदनामा में था। जब हम गुनाह करते हैं और माफी के लिए खुदा से दुआ करते हैं
تو اس لمحے پر ہمارے تمام گناہ مقدس پر منتقل ہو جاتے ہیں۔ کتاب مقدس کے مطابق مقدس مسیح کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ لکھا ہے کہ خدا مقدس کا کردار نبھاتے ہیں، پس تمام گناہ عارضی طور پر خدا کو منتقل ہو جاتے ہیں، اور جب وہ ہمارے دشمن ابلیس کو منتقل ہوتے ہیں تو اس لمحے پر تمام گناہ مکمل طور پر ختم ہو جاتے ہیں۔ تاہم اس میں ایک لازمی عمل ہے، یعنی کفارے کے دن پاک ترین مقام میں داخل ہونا۔ جب خدا نے پاک ترین مقام کو تعمیر کرنے کا حکم دیا تو کیا انہوں نے اس کے طول و عرض کی وضاحت نہیں کی تھی، جس کی لمبائی، چوڑائی اور اونچائی برابر ہو؟ آئے اس کی تصدیق پہلے سلاطین باب 6 سے کرتے ہیں۔ پہلا سلاطین باب 6 آیت 14۔ پس سلیمان نے وہ گھر بنا کر اسے تمام کیا، اور اس نے اندر گھر کی دیواروں پر دیودار کے تختے لگائے۔ اس گھر کے فرش سے چھت کی دیواروں تک اس نے ان پر لکڑی لگائی، اور اس نے اس گھر کے فرش کو سنوبر کے تختوں سے پاٹ دیا، اور اس نے اس گھر کے پچھلے حصہ میں 20 ہاتھ تک فرش سے دیواروں تک دیودار کے تختے لگائے۔ اس نے اسے اس کے اندر بنایا تاکہ وہ الہام گاہ یعنی پاک ترین مکان ہو۔ پاک مقام داخلی دروازے کے قریب ہے اور پاک ترین مقام اندر ہے، اس لیے اسے الہام گاہ بھی کہتے ہیں۔ آیت 17۔ اور وہ گھر یعنی الہام گاہ کے سامنے کی ہیکل 40 ہاتھ لمبی تھی، اور اس گھر کے اندر اندر دیودار تھا جس پر لٹو اور کھلے ہوئے پھول کندہ کیے گئے تھے۔ سب دیودار ہی تھا اور پتھر مطلق نظر نہیں آتا تھا، اور اس نے اس گھر کے اندر بیچ میں الہام گاہ تیار کی تاکہ خداوند کے عہد کا صندوق وہاں رکھا جائے۔ اور الہام گاہ اندر ہی اندر سے 20 ہاتھ لمبی اور 20 ہاتھ چوڑی اور 20 ہاتھ اونچی تھی۔ کس کی لمبائی، چوڑائی اور اونچائی برابر تھی؟ پاک ترین مقام کی لمبائی، چوڑائی اور اونچائی برابر تھی۔ صرف وہاں داخل ہونے سے ہی ہمارے گناہ مکمل طور پر ختم ہو سکتے ہیں، ورنہ گناہ ہمیشہ مقدس میں ہی رہیں گے۔ جیسا کہ ہم نے سلیمان کی ہیکل کی تعمیر سے تصدیق کی کہ پاک ترین مقام کی لمبائی، چوڑائی اور اونچائی برابر تھی، یہی منظر یوحنا کے مکاشفہ میں دوبارہ ظاہر ہوتا ہے۔ مکاشفہ کی کتاب باب 21 کی طرف جاتے ہیں۔ مکاشفہ باب 21 آیت 9۔ پھر ان 7 فرشتوں میں سے جن کے پاس 7 پیالے تھے اور وہ پچھلی 7 آفتوں سے بھرے ہوئے تھے، ایک نے آ کر مجھ سے کہا، ادھر آ، میں تجھے دلہن یعنی برا کی بیوی دکھاؤں۔ اور وہ مجھے روح میں ایک بڑے اور اونچے پہاڑ پر لے گیا، اور فرشتے نے اسے کیا دکھایا؟ شہر مقدس یروشلم کو آسمان پر سے خدا کے پاس سے اترتے دکھایا۔ آیت 16۔ اور وہ شہر چوکور واقع ہوا تھا، اور اس کی لمبائی چوڑائی کے برابر تھی۔ اس نے شہر کو اس گز سے ناپا تو 12,000 فرلانگ نکلا۔ اس کی چوڑائی اور اونچائی کیا ہے؟ لمبائی اور چوڑائی اور اونچائی برابر تھی۔ مکاشفہ باب 21 کے مطابق شہر مقدس یروشلم آسمان سے اترتے وقت کیسا دکھتا ہے؟ اس کی لمبائی، چوڑائی اور اونچائی برابر ہے۔ غلطیوں باب 4 آیت 26 کے مطابق یروشلم کس کو ظاہر کرتا ہے؟ مگر عالم بالا کی یروشلم آزاد ہے اور وہی ہماری ماں ہے۔ پرانے عہد نامہ کی شریعت کے ذریعے خدا نے ہمیں پاک ترین مقام کی اہمیت کا احساس دلایا۔ سردار کاہن سال میں صرف ایک بار پاک ترین مقام میں داخل ہو سکتا تھا۔ اس میں داخل ہوئے بغیر لوگوں کے گناہ ہرگز مکمل طور پر غائب نہیں ہو سکتے تھے۔ خدا ہمیں احساس دلاتے ہیں کہ یہ ہم پر بھی لاگو ہوتا ہے۔ اگر ہم یروشلم آسمانی ماں پر پختہ ایمان نہیں رکھتے تو ہم اپنے گناہوں کی مکمل معافی حاصل نہیں کر سکتے۔ آخر کار جب تک خدا ماں کی سچائی مکمل طور پر ظاہر نہیں ہو جاتی، گناہ کا مکمل خاتمہ ناممکن ہے۔ ہم شاید سوچیں، کیا سردار کاہن کسی بھی وقت
पाक-तरीन मकाम में दाखिल नहीं हो सकता था, ताहम खुदा ने ऐसा हुक्म नहीं दिया था। खुदा ने उन्हें कफारे के दिन के सिवा दाखिल होने की इजाजत नहीं दी थी। पाक-तरीन मकाम ऐसी जगह थी जहां सिर्फ सरदार काहिन साल में एक बार दाखिल हो सकता था। सिर्फ जब सरदार काहिन वहां दाखिल होकर कुर्बानी के खून का छिड़काव करता था तो उन लोगों के तमाम गुनाह जो एक साल में मकदस में जमा होते थे अज़ाज़ेल पर मुंतकिल हो जाते थे। सिर्फ इसी सूरत में पुराने अहदनामा में गुनाहों की मुकम्मल माफी दी गई थी। इस हवाले से कुछ ऐसा है जिसके बारे में हमें सोचने की जरूरत है। जब लोगों ने गुनाह किया तो अपने गुनाहों की माफी के लिए वो भेड़ियां बकरियां लाते थे। जानवरों के नुक्ता नजर से उन्हें कैसा लगा होगा, उन्होंने कैसा महसूस किया होगा, हमें एक लम्हे के लिए इसके बारे में सोचने की जरूरत है। वो जानवर किसको जाहिर करते थे? क्या ये नहीं लिखा है कि खता की कुर्बानी के तौर पर कुर्बान किए जाने वाले जानवर मसीह को जाहिर करते हैं? खुदा ने हता के जिन्स में भी इम्तियाज किया था। मिसाल के तौर पर ईद फसा का बरा कैसा होना चाहिए? उन्होंने वाज़े तौर पर जिन्स को भेड़ियां बकरियों में से नर के तौर पर अलग किया। उन्होंने हर कुर्बानी के लिए जिन्स में इम्तियाज किया, जैसे कि मेंढा या एक भेड़। इस सब का क्या मतलब है? हमें याद रखना चाहिए कि हमारे गुनाहों के कफारे के लिए हर कुर्बानी में खुदा बाप और खुदा माँ की कुर्बानी और दुख शामिल है। जब इस्राएली गुनाह करते थे और ये एहसास करते थे कि वो गुनाहगार हैं, तो वो काहिन के सामने अपने गुनाहों का इकरार करते और ये कहते हुए एक भेड़ लाते थे, मेहरबानी से मेरे तमाम गुनाह इस भेड़ पर मुंतकिल कर दें। भेड़ों के नुक्ता नजर से देखें तो ये जानते हुए कि वो मरने वाली हैं, वो कितनी खौफजदा हुई होंगी, ये कितना तकलीफदेह होगा। जब हम लुका बाब 22 पढ़ें तो हम मसीह के दिल को समझ सकते हैं जो कफारा के लिए कुर्बानी का बरा है। फसा के दिन पर यानी मसलूब किए जाने से एक दिन पहले उन्होंने अपने शागिर्दों के साथ कोहे जैतून पर दुआ की थी। उनके पसीने के साथ क्या हुआ था जो उनकी पेशानी से टपकता था? यह लिखा है कि उनका पसीना खून की बूंदों की मानिंद जमीन पर टपकता था। अगले दिन मसलूब होने के बारे में सोचते हुए उन्होंने दुआ की, ऐ बाप, अगर तू चाहे तो ये प्याला मुझसे हटा ले। भेड़ बकरियां जो कफारा की कुर्बानी के तौर पर गुजारी जाती थीं, हर रोज ऐसा तजुर्बा करती थीं। ऐसे दर्द और तकलीफ को भेड़ पर मुंतकिल ना करने के लिए लोगों को गुनाह नहीं करना चाहिए। क्या ये सच नहीं है? अगर लोग गुनाह करते हैं तो वो गुनाह नागुज़िर तौर पर भेड़ बकरियों पर मुंतकिल हो जाएंगे जो बाप और माँ को जाहिर करती हैं। कफारे के दिन के जरिए हमारे तमाम गुनाहों और खताओं का मुकम्मल तौर पर कफारा दिया जाता है। अब से ये कहने के बजाय कि ईद फसा और नए अहद की सिंचाई में बाप और माँ से की गई हमारे दुआओं के वसीला हमारे गुनाह मुकम्मल तौर पर माफ हो गए हैं, और मुसलसल गुनाह करते रहने के बजाय हमें बाप और माँ के दिल पर गहराई से गौर करने की जरूरत है, जो हमारे लिए खता की कुर्बानी और कफारा की कुर्बानी बने। कुर्बान गाह पर कुर्बान होने वाली भेड़ क्या महसूस कर रही होगी? उस तेज और हौलनाक ब्लेड के बारे में सोचें जो उसके जिस्म पर लगा होगा। जैसे बरा को ज़िबा करने के लिए ले जाया जाता है, वो नहीं जानता कि क्या करे। उसे ना चाहते हुए भी उस राह पर चलना पड़ता है। इसलिए खुदा ने ये कहते हुए संजीदगी से हमें नसीहत और ताकीद की है कि फिर गुनाह में मुलविस ना हो, गुनाह से ताल्लुक ना रखो और दोबारा गुनाह के गुलाम ना बनो।
अगर हम अपने गुनाहों से खुद निपटें तो शायद हम मसले को कम संगीन समझें, जबकि हम हर रोज बाप और माँ को ऐसा दर्द देते हैं। इसराइली दिन में 2 बार सुबह और दोपहर को कुर्बानियां गुजरानते थे। अगर ये 365 दिनों तक किया जाता है तो एक साल में कम से कम 720 बार उन्हें मौत के दर्द से गुजरना पड़ेगा और दुख सहने होंगे। वो उन गुनाहों के बदले भी खता की कुर्बानी बनते हैं जो लोग मुसलसल हर रोज करते हैं। अगर 100 लोग गुनाह करते हैं तो इसमें 100 और बढ़ जाते हैं, और अगर 1000 लोग गुनाह करते हैं तो इसमें 1000 और बढ़ जाते हैं। आप सब हमें वाकई लफ्ज फिदिया के बारे में सोचने की जरूरत है। ये हमारे अपने गुनाह उठाने के बारे में नहीं है, बल्कि उन्हें किसी और को मुंतकिल करने के बारे में है। अपने गुनाह को मुंतकिल करने वाला शख्स इसके बारे में ज्यादा महसूस नहीं कर सकता, क्योंकि उसके लिए असर अहम नहीं है, वो मजदूरी नहीं दे रहा है। ताहम हमारे खुदा बाप और माँ के बारे में क्या कहेंगे जो हमारे गुनाहों का फिदिया बने? ऐ बाप, अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे हटा ले। ये देखते हुए कि उनका पसीना खून की बूंदों में बदल गया और उनकी पेशानी से जमीन पर टपका, वो कितने मुखलिस रहे होंगे। हमें इस बात का अज़्म करना चाहिए कि फिदिया के लफ्ज को सरसरी ना लें, सिर्फ इसलिए कि हमें इससे कोई बराह रास्त असर या तकलीफ का तजुर्बा नहीं होता। नेज़ इस बात पर भी गौर करें कि ये तारीख मूसा के जमाने से मसीह के जमाने तक 1500 सालों के तवील अरसा में मुसलसल दोहराई जाती रही। यूं नए अहद का ज़ाब्ता कायम हुआ था। क्या नए अहद का निज़ाम बहुत ज्यादा दर्द की कीमत पर कायम नहीं हुआ था? नए अहद की सच्चाई में हत्ता के एक भी ईद, सबत का दिन या खुदा के आइनो फरमान और ज़ाब्ते गैर मामूली नहीं है। ये सब खुदा की कुर्बानी से कायम किए गए हैं। बस हमें अपने आसमानी वालिदैन की लामहदूद मोहब्बत, कुर्बानी और खुलूस को हरगिज नहीं भूलना चाहिए, जिन्होंने इसे अपने बच्चों तक पहुंचाने की हर मुमकिन कोशिश की। जब भी हम ईदें मनाते हैं तो ये हमें इसकी याद दिलाता है। इसलिए कफारे के दिन आए हम आइंदा कभी गुनाह ना करने का पुख्ता अज़्म करते हुए हर तरह के हालात में मुखलिसी के बेपनाह फजल के लिए खुदा का शुक्र अदा करें। जैसा कि खुदा ने हमें सिखाया है, हमें दुनिया का नूर और जमीन का नमक बनना चाहिए और उस राह पर दयानतदारी से चलना चाहिए जो खुदा ने हमारे लिए मुकर्रर की है। आज जैसे कि हमारे गुनाह माफ किए जा रहे हैं, तो हमें एक बार फिर अपने दिलों पर बाप और माँ के दिलों को कंधा करना चाहिए जिन्होंने फिदिया दिया है। उनके फजल का शुक्र अदा करें और हमारे सुपुर्द किए गए खुशखबरी के खास काम को वफादारी के साथ अंजाम दें। बादशाह सोचें, हमें इस जमीन पर क्यों मुनादी करनी चाहिए? मुनादी को दूसरे गुनाहगारों को तौबा की तरफ ले जाने के तौर पर देखा जा सकता है, जो कि खुदा के हजूर सच्ची तौबा का इजहार है। इसलिए खुदा ने हमें सामरिया और जमीन की इंतहा तक सब लोगों को इस खुशखबरी की मुनादी करने का हुक्म दिया है। इसीलिए अब हम मुनादी कर रहे हैं। आप सब बहुत से लोगों को मुनादी करना, उनकी रहनुमाई करना और उन्हें आगाह करना आसान नहीं है। तो फिर खुदा ने हमें ये खास काम क्यों बख्शा? खुदा हमसे चाहते हैं कि हम इस खुशखबरी को सब लोगों तक पहुंचाएं, ताकि वो इसे कबूल करने वालों को उनसे अलग कर सकें जो इसे कबूल नहीं करते। यही वजह है कि हम खुशखबरी की मुनादी कर रहे हैं। ये हरगिज खुद पर फख्र करना नहीं है। चूंकि हमने आसमान में गुनाह किया था और इस जमीन पर फेंक दिए गए थे, इसलिए हम यानी आसमानी गुनाहगारों के लिए खुदा का सबसे बुनियादी हुक्म यह है कि अगर तुमने सच्ची तौबा की है तो दूसरों की भी तौबा करने में मदद करो।
यही मुनादी है। हम लोगों को तौबा की तरफ ले जाने के लिए मुनादी करते हैं, ना कि महज उन्हें फसा और सब्बत के दिन से आगाह करने के लिए। क्या मुनादी करने का मकसद लोगों को हमारे आसमानी बाप और आसमानी माँ को पहचानने की राह दिखाना, दुरुस्त तौर पर इस बात का एहसास करवाना कि हम आसमानी फरिश्ते थे जो इस दुनिया में नीचे फेंक दिए गए हैं और अपने खोए हुए आबाई घर आसमान की बादशाही में वापस जाना नहीं है? इस कफारा के दिन के वसीला तमाम फर्जंदों को सबसे पहले मुखलिसी के बेपनाह फजल को महसूस करना चाहिए। हमारे आसमानी बाप और आसमानी माँ के फजल पर गौर करते हुए, जिन्होंने सलीब पर खून बहाने तक हमारे गुनाहों को उठाया, सयून के खानदान को खुशखबरी का खास काम अंजाम देने में अपनी बेहतरीन कोशिश करनी चाहिए। पुराने अहदनामा के ज़ाब्ते की अहमियत पर गौर करते हुए हम समझ सकते हैं कि दुश्मन यानी इब्लीस अब्दुल अबाद अजाब में मुब्तला होगा और आखिर में अथाह घड़े में हलाक होगा, जैसा कि मुकाशफा में लिखा है। ये गुनाह को खत्म करने का पूरा अमल है जिसे खुदा ने नए अहदनामा में जाहिर किया है। पुराने अहदनामा की तमाम कुर्बानियां नए अहदनामा में होने वाली चीजों का आईना और अक्स थी। इस अमल में आसमानी बाप और आसमानी माँ कफारा की कुर्बानी बने। एक बार फिर मैं अपने तमाम आसमानी खानदानी अराकीन से कहूंगा कि उनकी कुर्बानियों को हरगिज ना भूलें। इसके साथ मैं आज का वाज खत्म करना चाहूंगा। आपका बहुत शुक्रिया।